بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خوشبو خان. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی الیکٹرانک میڈیا کا، اپنے سارے جتنے بھی سوشل میڈیا والے ہیں، جتنے بھی میڈیا صحافی، جتنے لوگ بھی ہیں، کہ انہوں نے یہ وقت نکالا اور مجھے یہ وقت دیا. بہت ساری باتیں میں بڑے دنوں سے سن رہی تھی، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہم نہیں کر پا رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم لوگوں کی سن لیں، اور ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، اور اللہ پہ یقین رکھ کے جو بھی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے جو بات کریں گے سچی کریں گے. جی ڈیفینیٹلی یہ پلان ہے، کیونکہ میں نے ان کے تھیٹر میں کام کیا. کام کرنے کے بعد میری کچھ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، کوئی ان کے ساتھ رنجش ہوئی ولگیرٹی سے، کہ کچھ آرٹسٹ وہاں پہ ولگر کر رہے تھے تو میں نے ان کو منع کیا کہ ولگیرٹی نہ کریں. تو اس بات پہ میری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. اور فرسٹ آف آل جی جو مہک نور صاحبہ، وہ ان کے میاں حضرات جو بلال خان، جو کہ ان کے میاں نہیں ہیں، 5-6 سال سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن ناجائز، جو کہ ہمارے قرآن میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح رہنا. وہ اپنے آپ کو میاں بیوی بتاتے ہیں، لیکن مہک نور اور بلال خان آپس میں میاں بیوی. مہک نور وہ اپنا ہی ڈرامہ بلال خان وہاں پہ لگا رہا تھا، اپنے پیسے انویسٹ کر رہا تھا. ملک طارق کا کوئی پیسہ انویسٹ نہیں ہوا. تو سارا جو پیسہ انویسٹ کر رہا تھا وہ بلال خان کر رہا تھا مہک نور کو ہائٹ دینے کے لیے اس کو. جبکہ ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ کاشف قدو کو پکڑ کے پولیس لے کر آئی ہے. پولیس لے کر آئی ہے تو آپ نے سارے سب بھائیوں نے، سب صحافیوں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ تھیٹر کے اندر کاشف کی ویڈیو بنی. کاشف کو مارا گیا، قدو کو بہت مارا گیا. ساری رات اس کو وہاں سے پکڑا انہوں نے 17 تھیٹر سے. صبح 11 بجے تک اس کو مارتے رہے، اس کے اوپر تشدد کیا. آپ دیکھیں کہ اس کو جس بندے کو اتنا مارا جا رہا ہو، 10 بندے اس کے اوپر کھڑے کے اس کو مار رہے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ میرے اوپر الزام کیسے نہیں لگائے گا؟ اس کو زبردستی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ خوشبو کا نام لو، خوشبو کا نام لو. بلال خان نے بھی مارا اس کو، ملک طارق نے مارا اس کو، اویس نے مارا اس کو، اس کے دونوں بیٹوں نے مارا اس کو. اتنے سارے لوگوں نے، اس کے علاوہ اور بھی کتنے سارے لوگ ہوں گے جو ساری رات اس قدو کو مارتے رہے ہیں جسٹ اس سٹیٹمنٹ کے لیے کہ خوشبو کا نام لیا جائے، جبکہ میری ان کے ساتھ کوئی رنجش نہیں تھی. اور جیسے کہ مہک نے بولا سستی شہرت مجھے چاہیے، آپ سب جانتے ہیں مجھے بچپن سے. میں نے ویڈیو کلپ بنا کے بھیجے کہ مجھے جب بلایا جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گی. اگر میں چور ہوتی تو میں یہ لفظ کیوں کہتی؟ آج بھی میں نے پوری پریس کو بلایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، مجھ سے پوچھے. اگر میں جرم دار ہوں تو میں تب بھی آپ کے سامنے ہوں، میں جیسی بھی ہوں تب بھی آپ کے سامنے، میں بری ہوں میں تب بھی. ساری رات مارا گیا. وہاں پہ صرف 2 صحافیوں کو بلایا گیا جو کہ جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں، ایزی پیسہ. وائی؟ ان کو کیوں بلایا گیا؟ نہیں، وکٹم کوئی نہیں ہے اس کا. دیکھیں ملک طارق صاحب کے اوپر آلریڈی کافی سارے پرچے ہیں، جس کے اوپر یہ ہمارے پاس یہ سارے ثبوت ہیں. یہ آپ سب چیک کر سکتے ہیں، یہ بانٹ سکتی ہوں میں، یہ سب دیکھ سکتے ہیں. ان کے بیٹے ملوث ہیں، ان کے اوپر زنا کے پرچے ہیں، ان کے اوپر ان کے تھیٹر میں منشیات شروع کروائے گئے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ پرچے آپ کے سامنے ہیں. آپ ان سے ڈیٹے پڑھیں، یہ کب کی ہیں، یہ اب کے نہیں ہے. تب میں نہیں تھی، تب میں اس تھیٹر کو جانتی بھی نہیں تھی. تب میرا نام کیوں نہیں آیا؟ تب بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، تب بھی سب چیزیں ہو رہی تھی. تب کیوں نہیں ہوا سب کچھ؟ ملک طارق صاحب جو کہ بہت پراپر ایک مجرم ہے، جو کہ ان کے بیٹے بھی. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی، بقول سب کے ریکارڈ کہ 25 تاریخ کو مجھے ویڈیوز آئیں، ٹھیک ہے جی، میرے پاس ویڈیو 25 کو نہیں آئی. سائبر کرائم ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں، ایف آئی اے والے ہماری عزت کی جگہ پہ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میرے پاس جو کہ غزل راجہ کا خامد ہے، جس کا لاہور سے تعلق نہیں ہے، اس کے پاس ویڈیو کیسے گئی مہینہ پہلے؟ میرے اوپر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے کہ 25 تاریخ کو میرے پاس ویڈیو آئی ہے؟ اگر سائبر کرائم صاحب اتنے نہ میرے فون سے فارورڈ ہوئی ہے، نہ میرے فون میں سینڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر یہ کہہ رہے کہ میں نے پیسے اس کو دیے ہیں، میں نے پیسے دے کے اس سے یہ سارا کام کروایا ہے، تو ویڈیو سب سے پہلے میرے پاس آنی چاہیے. میرے سے پہلے ان سب آرٹسٹوں کے پاس کیوں ہے ویڈیوز؟ یہ بتا دیجیے گا کہ جو کاشف ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح رابطے میں تھا، وہ کس طرح آپ کے پاس آتا تھا؟ دیکھیں جی، کاشف قدو میرے ساتھ خالی نہیں، جیسے کہ زارا نے بولا کہ وہ غریب کی شکل دیکھ کے ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر چھوڑ کے آتی ہیں، ہم اس کو اللہ کے نام پہ پیسے دیتی ہیں.
सिल्क ने भी बोला कि हम उसको अल्लाह के नाम पे पैसे देती है, गाड़ी में बिठा के जहाँ पे कि हम छोड़ कर आती हैं। मैंने तो उसको आज तक गाड़ी में नहीं बिठाया। मेरे घर पे आता है, उनके घर दे के आता है। मेरे पास वॉइस नोट है, आप सुन सकती हैं, आप सुन सकते हैं, सब सुन सकते हैं कि हमारे पास पैसे आते हैं। हमें पैसे इस दफ़ा नहीं मिले क्योंकि इस महीने के पैसे वो लेकर गया लेकिन उनके घर नहीं पहुँचे। वॉइस नोट सुनना चाहते हैं तो मैं अभी आपको सुना देती हूँ। ये वॉइस नोट दे, फोन दे जी, अगर उसका मेरा कांटेक्ट निकालेंगे तो 3 महीने से मेरी ना उसके साथ सेंडिंग हुई है, ना 25 को उसने मुझे सेंड की है, ना उस आप सेंडिंग निकालेंगे या आप कांटेक्ट निकालेंगे तो मेरी उसके साथ सेंडिंग है ही नहीं। जी बिल्कुल बनी होंगी, ये पता नहीं कब से बन रही हैं। जबकि डॉक्टर अजमल के पास वीडियोस हैं, उनके ऊपर भी पर्चा है। उन्होंने एक औरत को ब्लैकमेल किया जाके, मुझे नहीं उसके नाम का पता, लेकिन मुझे इतना पता उनकी FIR भी आप निकलवाएंगे तो उनकी FIR निकलेगी डॉक्टर अजमल साहब की, कि उन्होंने एक और लड़की को जाके ब्लैकमेल किया कि हमें ये वीडियो मेरे पास है, या मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड करो या मुझे पैसे दो। पुराना केस है ये, देखें आपके सहाफ़ी भाई आपके बता रहे हैं। तो उनके पास बताए इतने अरसे से वीडियोस बन रही हैं इस शालीमार थिएटर में, तब मैं वहाँ पे काम नहीं करती थी। मेरी मेरिट पे तफ्तीश करें और जिसने ये वीडियो बनाई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ, मैं उनकी एंगेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये ज़्यादती ही है, ज़्यादती हुई है। जिसने भी करवाई है उसको सज़ा सख्त मिलनी चाहिए और मेरिट पे फैसला होना चाहिए। मेरी खामोशी का मतलब यही था, जिसका नजायज़ फ़ायदा बहुत सारी आर्टिस्ट उठा रही थी, जो कि हमारी महक नूर साहिबा बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि जी इन्होंने बेल क्यों करवाई, इन्होंने ये क्यों करवाया, ये मुजरिम थी, फलानी थी, ऐसी थी। तो मैं चाह रही थी कि मैंने अपना फैसला खुदा पे छोड़ा हुआ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों प्रूफ दूँ? जबकि साइबर क्राइम वालों के पास डाटा है, लड़का है, हर चीज़ है, तो मैं क्यों बोलूँ? वो मुझे बोले, वो मुझसे पूछे, जो चीज़ होगी सामने आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। जो मेन अक्यूज्ड है वो एडमिट कर चुका है कि वीडियो मैंने बनाई है। अब इनके कहने पे बनाई है, मेरे कहने पे बनाई है, ये साबित करेंगे। हमें तो 109 की हद तक ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये साबित करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगा। और जैसा कि उसको मार के बुलवाया गया कि मेरा नाम ले, तो उसको साथ कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आबदा जी बता सकती हैं, इन्होंने मुझे जानती हैं, ये बैठे हुए हैं, TMO साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, इनके थिएटर में भी देखे, ये भी वहाँ से आए हुए हैं। पूछे हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया, और वल्गैरिटी से मैं लड़ी हूँ, मेरी वल्गैरिटी से लड़ाई हुई है। पूछे इनसे, बोले आबदा जी बताइए। जी सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये भयानक तरीन, गंदा तरीन ये काम हुआ है, जो भी है। ये हमारी पूरी लाइफ, मेरा 36-37 साल से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में, और ये मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा चांस है जो हुआ है। बात यह है कि पहले भी मैं इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोगों को, ये बच्चों ने काफ़ी इंटरव्यू लिया, मैंने उसमें कहा है कि जी खुशबू का कैलिबर नहीं है। वो बच्चियाँ वो 6-7 लाख रुपया लेती है, वो बच्चियाँ अभी 1.5 लाख स्ट्रगल में अभी भी वो। दूसरी बात यह है कि उसका कैलिबर नहीं है, लेकिन आगे रब बेहतर जानता है कि इसके पीछे कौन है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चे को जो कुद्दू है, वो तो बेचारा जाहिल सा गवार सा बच्चा, गरीब आदमी है, उसको मोबाइल चलाना ही नहीं आता, सीधी जो बात है। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम किया गया, और इसके पीछे मैंने खुले लफ्ज़ों में कहा कि थिएटर वाले शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब मलिक तारिक साहब आपके थिएटर में आर्टिस्टें काम करती हैं। अब अगर आप कैमरे लगाएंगे अपने कैबिन्स में या कमरों में, तो फिर लड़की की तो किसी की भी इज्जत महफूज नहीं ना वहाँ फिर। तो बात यह है कि मलिक तारिक साहब जो है हमारे बड़े अच्छे हमारे कुलीग हैं, लेकिन अगर सच्चाई की बात है तो अगर खुशबू ने किया है तो साबित कर दें। मैंने उन बच्चियों के साथ हैं, हम ये उनके साथ भी ज्यादती हुई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हमारी बेटियों, मेरी बेटियों की तरह है। मैं सच्ची बात है, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन वो प्रूफ कर दें। FIA वाले, हमारी जो पंजाब पुलिस है वो इतनी तेज़ है माशाल्लाह कि अगर चाहे तो 20 मिनट में बंदे को निकाल सकती है, चाहे तय में भी छुपाओ, ठीक है, वो ट्रेस कर सकते हैं। फिर आजकल तो मीडिया का दौर है, करें ना, फिर क्यों इतना लेट कर रहे हैं। तो वो खुदू को तो नाजायज़ मारा जा रहा है, उसको मार मूर के हरासा करके उसको खुशबू के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। जबकि मेरा जो फैसला, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरा जो पैसों का फैसला था, जो पैसे लेन देन का मामला था, वो भी इसी जगह पे हुआ है
यहीं पे पंचायत लगी है। इसी पंचायत में बड़ी हंसी खुशी सब लोग शामिल हुए हैं। मलिक तारिक साहब खुद यहाँ पर आए हैं। मुझे बताया खुशबू साहब, एक मिनट, मुझे बताया आरफ गुज्जर साहब जो हमारे बिग प्रोड्यूसर रहे हैं माशाल्लाह, और उन्होंने राज किया फिल्म इंडस्ट्री में भी और थिएटर में भी, लाहौर थिएटर, अलहमरा, उन्होंने इतना काम किया कि हज़ारों आर्टिस्ट उन्होंने बना दी, जिसमें मैं नंबर 1 बैठी हुई हूँ कि मेरे सर पे उन्होंने कैसे हाथ रखा है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। और उन्होंने मुझे आते ही बताया कि बस 17-18 लाख रुपए का था काम, वो हमने उसके मुंह पे मारे दे दिए, ठीक है। अब पैसे दिए गए तो काम खत्म हो गया। तो बात ये है कि किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि ये FIA वाले इसको साबित करें, और दूसरा वो बीबियां जो हमारी बच्ची हैं वो साबित करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना खुशबू पे, अगर ये गुनाहगार होगी तो हम इसको सजा देंगे सब मिलके। मैं यही हूँ, बैठी हूँ। हमने पहले बात की कि मैरिट पे फैसला होना चाहिए। मैरिट के बाद जप्पी है क्या, पप्पी है क्या, सब कुछ होगा, खाना भी खिलाया जाएगा। उनकी साइड से हो सकता है, हम लोग तो क्योंकि मैरिट पे बात करें इसलिए मैं खामोश रही हूँ कि मैं अभी तक नहीं मैंने किसी बात का जवाब दिया। इसीलिए ये जो शालीमार थिएटर है ये कंटोनमेंट में आता है, ठीक है कि नहीं, यानी कि आर्मी के अंडर आता है। हमारी आर्मी जो है माशाल्लाह हमारे मुल्क को अच्छा कर रही है, हमारी आर्मी को सलाम है। तो ये आर्मी के अंडर अगर आता है तो वहाँ 17-17 गाने हों तो गंद हो, ये कहाँ का असूल और रूल है? मुझे बता दें कि ये आर्मी वालों के अगर अंडर है तो वहाँ 16-16, 17-17 गाने क्यों हो रहे हैं? सब कैबिन्स में कैमरे हैं। मलिक तारिक के ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं जो कि बाकायदा देख के मॉनिटर करता है उसको। तो वो क्यों नहीं देख रहा कि ये सब कुछ जो पीछे हो रहा है बैक स्टेज, तो क्यों नहीं चेक कर रहा? बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं। देखिए जी, मेरे साथ एक जिनकी वीडियो लीक हुई है उनकी मुलाकात हुई है। मेरे साथ वो बड़े अच्छे बिहेव से मिली हैं, बहुत प्यार से मिली हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है, और हम उसको ढूंढना चाहते हैं कि वो कौन है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है। वो लड़कियां भी यूज हुई हैं, जैसे उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं इस वक्त, और उनको समझ नहीं आ रही। उनको समझ तब आएगी जब उनको यूज करके फेंक दिया जाएगा। तो उनको वो जो सिल्क है उसको तो मैं खुद अपने साथ हर जगह काम करवा रही हूँ। अगर मैं उसको काम करवा रही हूँ, मैं उसको ऑब्लाइज कर रही हूँ, तो आप सोचिए कि मैं उसकी वीडियो में क्यों बनवाऊंगी जी। इसमें देखें एक प्लानिंग का हिस्सा है, बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा, कोई छोटी प्लानिंग नहीं है। ये पता नहीं अब कितनी लड़कियों की वीडियो वहाँ से लीक हो चुकी हुई हैं, कितने लोगों की वीडियोस बन के वहाँ पे बिकी हैं। वहाँ पे जो आते हैं वो बैक स्टेज भी बैठे होते हैं, वो आते हैं वो सब कुछ वहाँ पे पैसे दे के पीछे बैठ के भी वो पर्दे से भी ड्रामा देख रहे होते हैं। उनके बेटे पैसे लेते हैं, वो अंदर कोई इवेंट कर रहे होते हैं तो वो पैसे लेके उनको वहाँ पे भी बिठाते हैं। क्यों बताइए आप, ऐसा होता है या नहीं होता? बताएं आप। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि हर चीज वहाँ पे होती है। ये वहाँ पे रहे हैं, इनको भी मालूम है। मैंने उसका नाम निकलवाया। जब उसका नाम आया ना कि ये बंदा जो है ना ये अपना जराइम पेशा है, इसके बेटे भी जराइम पेशा हैं, वहाँ पे वो साथ अपना क्या नाम है अपना लोगों को वहाँ पे जगह भी देते हैं, लड़कियां भी लोगों को वापस सप्लाई करते हैं और वहाँ पे उनको वो अपना नशा देते हैं। जैसे ये लिस्ट बनी हुई अपने लाहौर में कि ये बंदा बदमाश है, ये बंदा जराइम पेशा है। इसमें इसका नाम था मलिक तारिक का, मैंने उसका नाम निकलवाया बड़ी मुश्किल से। उनके थिएटर में कोई बड़ी आर्टिस्ट काम नहीं करती, जितनी भी हैं मतलब कि जो आने वाले वक्त की वो स्टार्स बनेंगी तो वो काम कर रही हैं। अब उनको नहीं पता उनके साथ क्या क्या हो रहा है और ये कब से काम चल रहा है। उनके हाथ में जब मैं लगी हूँ तो जब मेरी उनकी थोड़ी सी अगर बात बिगड़ी तो जो इसी जगह पे ख़त्म भी होगी। पैसे दे दिए आरिफ साहब ने, सब ने पैसे दे दिए और उसके बाद उन्होंने ये प्लान करके महक नूर को जब क्लैप नहीं आ रही थी, महक नूर हर थिएटर से निकली है, उसको कोई थिएटर में काम नहीं करने दे रहा या काम नहीं करवा रहा, तो उन्होंने एक घटिया प्लान मिलके सब ने किया और उसमें मुझे मुलव्वस कर दिया।